Mariam, and today we will talk about arterial and venous pulse. ठीक है? Okay, so what is arterial pulse? So you will be able to know the definition of arterial pulse and how to identify the arterial pulse. इसका procedure क्या है? ठीक है? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। Screen share नहीं हो रहा क्यों? Screen भी share कीजिए ना. अब हो रहा है? यस मैम। सबको हो रहा है screen share? Yes, ma'am. Okay, good. Acha, so what is arterial pulse? It is basically a rhythmic expansion of the arterial wall due to transmission of pressure waves that travels along the arteries due to forceful ejection of blood during systole into the arterial system. ठीक है, जो arterial system में forceful ejection होती है through the veins, so जो pressure होता है ना, तो उसके through जो pulsation feel होती है, that is called arterial pulse. ठीक है, so what are the principles? अच्छा, so during each ventricular systole, a pressure wave is transmitted along the arterial tree. Or pressure waves expand the arterial wall, which is palpated as pulse. So arterial wall पे जो आपको pulsation felt होगी, that is due to the pressure in the arterial wall, and that is called the arterial pulse. Procedure क्या होगा? First you have to take a subject, you have to make him sit comfortably, and if that patient is anxious या कोई anxiety है, कोई problem है उसको, so try to make him feel comfortable, ठीक है? Then expose the forearm, ठीक है? And then place forearm in a semi-pronated position, and wrist is slightly flexed, and gently compress the radial artery against the radius. ठीक है? Radius जो है radial artery को तो पता है कहाँ पे होती है? Radial artery wrist पे कहाँ पे होती है? Medial to the trunk or lateral to the? Medial, ma'am, I Medial, think. medial. lateral. Lateral to the trunk. Medially तो ulnar होती है, lateral जो है वो radial होती है, ठीक है? So you have to place the forearm in a semi-pronated position. Wrist जो है वो slightly flexed होना चाहिए, and then gently compress the radial artery against the radius, ठीक है? Then what are the parameters? हम ये क्यों करते हैं? हम क्या check करते हैं? So basically we check the rate, ठीक है? जो normal rate होता है that is at a range of 60 to 100. If it is more than 100, that is tachycardia, and if it is below 60, then it is called bradycardia, and we usually check this in a 1 minute of duration. ठीक है? We have to check the rhythm and volume, character, condition of the vessel wall, or equality की equally pulsation हो रही है कि नहीं. We have to check for the radiofemoral or radial delay, and other peripheral pulses. ठीक, and what are the other peripheral pulses? We will see in the coming few slides. अच्छा, what are the parameters of the pulse? हम पिछले स्लाइड में सारा elaborate कर चुके हैं कि कौन कौन से हैं. Now we will discuss one by one. So rate is basically it is a count in a 1 complete minute. जो 1 मिनट में आप count लेते हैं of pulses, so that will be the rate. ठीक है, normal जो है the range is 60 to 100 beats per minute. ठीक है, and if it is more than 100, so we will call it tachycardia, and if it is less than 60, then we will call it bradycardia. So there are few causes. Some are physiological and some are pathological for tachycardia. So physiological causes will be exercise, ठीक है? If you do exercises, so your heart rate goes up, ठीक है? Infants and children maybe usually they have the tachycardia, which is physiological, or excitement में or anxiety में. Usually exams में students get anxious and their heart rate goes up, ठीक है? So these are some physiological causes for the tachycardia. And the pathological causes are fever, ठीक है? Fever में जो है तो tachycardia होता है. In thyrotoxicosis, the patient whose thyroid levels are deranged or increased, so they will experience this tachycardia symptom, ठीक है? And tachyarrhythmias, जिनके normally तो 60 to 100, if it is more than 100, that is tachycardia, then there are few grades to the tachycardia, ठीक है? 1, 2, 3, 4 है. इसमें फिर range like करते हैं between 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, and then more than 350, तो वो फिर fibrillation में आता है, ठीक है? So these are the tachyarrhythmias, ठीक है? और hemorrhagic shock जो है तो उसमें भी tachycardia होगा.
And then we have some physiological and pathological causes for the bradycardia. जो physiological causes हैं तो वो athletes में होगा, old age में होता है, ठीक है, which is physiological, और meditation में because it cools down your body, ठीक है, तो जो आपका जो peripheral circulation जो है तो वो bradycardic हो जाती है, ठीक है, और pathological causes जो हैं तो वो heart blocks है. Okay, rhythm. So you have to check for the rhythm by spacing order at which successive pulse waves are felt. ठीक है, या तो regular होगा या irregular होगा. You have to check for the rhythm, like you have to place your hand at the radial artery. Okay. जिन्होंने ज्वाइन करने काइंडली जल्दी ज्वाइन कर, लेकिन बीच में फिर डिस्ट्रैक्शन कॉज होती है. अच्छा, so you have to place your fingers at the radial artery side, ठीक है, and then you have to hold it for like 1 minute, and you with the rate you have to check for the rhythm whether it is regular or irregular. ठीक है, रेगुलर में ये होगा कि सक्सेसिव जो है तो आपको पल्सेस जो है वो फेल्ट होगी, ठीक है, थ्रू पल्सेशन, ठीक है, और अगर नहीं होगी या कोई स्किप हो जाए तो दैट इज कॉल्ड इररेगुलर रिदम. हम सब का रेगुलर है, ठीक है, अभी अपना चेक करें ना. सो वी ऑल आर हैविंग अ रेगुलर रिदम. अच्छा, वॉल्यूम. सो इट इज बेसिकली द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द वेसल वॉल ड्यूरिंग ईच पल्स वेव, ठीक है, जो हर पल्स वेव में जो एक्सपेंशन होगी वेसल में ड्यू टू द प्रेशर, सो दैट विल शोज द वॉल्यूम. Whether the pulse is forceful or slow, so according to that we will see कि वॉल्यूम जो है तो उसका कितना है, डिक्रीज है और इंक्रीज है. So there are few causes for low volume or high volume pulse. So for the low volume pulse, there will be, if there is aortic stenosis, ठीक है, or mitral stenosis or pulmonary stenosis or shock, so the volume of the pulse will be low. और high volume के लिए जो है तो वो fever है, thyrotoxicosis है and exercise. और exercise में moderate या low वाला नहीं, जो strenuous exercise होता है ना, that will cause the pulse volume high. ठीक है, okay. So the character of pulse, normally it is catacrotic, ठीक है, but in case of typhoid patients the pulse will be dicrotic. There will be twice beating, ठीक है. Normally तो एक pulse we feel one pulse at a time, but in typhoid patient we will feel twice beating, ठीक है, एक pulse की जगह हमें double pulse जो है तो वो feel होगा. And pulses alternance, तो ये जो है तो बेसिकली इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में होता है. इसमें एक जो है वेव वो स्ट्रांग होता है एंड द अदर वेव इज वीक. सो देयर इज स्ट्रांग एंड वीक अल्टरनेटिव वेव्स. ओके, अच्छा, कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल का हमें कैसे पता चलेगा? बाय पल्पेशन, ठीक है. इफ इट इज पल्पेबल और नॉट पल्पेबल, तो यूजुअली तो पल्पेबल होता है, बट इन ओल्ड एज इट इज वीकली पल्पेबल और नॉट पल्पेबल. क्योंकि ओल्ड एज में अक्सर जो है तो हार्ट कंडीशंस भी होती हैं, किसी की वजह से पल्स इंक्रीज होता है, एंड अदर केसेस द पल्स डिक्लाइंस, ठीक है. So for the palpation of the radial pulse, you have to apply the 3-finger method, ठीक है. You have to place 3 fingers, जो middle fingers होता है, index है, middle है and ring finger. You have to place that on the side of the radial artery, ठीक है. जो proximal index finger होगा, that will obliterate the vessel. Distal जो होगा ring finger, that will empty the vessel. और जो middle finger होगा, with the help of middle finger, you will be able to palpate the pulse, ठीक है. So that's how you are going to please मैम प्लीज काइंडली सिंपली बताएं. जी मैम ये दोबारा सिंपली बताएं. अच्छा बच्चे, ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, जो इंडेक्स फिंगर है ना उसको आपने ऑब्लिटरेट करना है, ठीक है. और जो मिडिल फिंगर है विद द हेल्प ऑफ क्या मतलब मैम ऑब्लिटरेट करना है? ऑब्लिटरेट मतलब थोड़ा सा कंप्रेस करना है, तो जो ऊपर की पल्सेशन होगी वो जरा प्रोमिनेंट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मिडिल फिंगर. थोड़ा सा स्लाइटली आपने प्रेस करना है. अभी आप चेक कर लें अपने हाथ पे, पल्स चेक कर लें.
मैम फिर से बताएं, ऑब्लिटरेट का क्या मतलब है? ऑब्लिटरेट का मतलब है बच्चे कि आपने पल्स को थोड़ा सा स्लाइटली कंप्रेस करना है। ऑब्लिटरेट को आप छोड़ें, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दिस टर्म ऑब्लिटरेट, ठीक है। आपने क्या करना है कि यू हैव टू प्लेस यूर 3 फिंगर्स एट द साइड ऑफ द रेडियल आर्टरी, ठीक है, एंड यू हैव टू स्लाइटली कंप्रेस द जो डिस्टल फिंगर होगा आपका, और जहाँ से आप कर रहे हैं, लाइक किसी का जो है तो इंडेक्स फिंगर डिस्टली आएगा, किसी का जो है तो लोअर फिंगर, यू विल बी एबल टू palpate द पल्स। स्लाइटली जो है आपने प्रेस करना है। अभी भी आप कर लें तो आपको पल्स जो है तो वो क्लियरली आपको palpate हो जाएगा। मिस रिंग फिंगर की पोजीशन और समझाएं। किस फिंगर की? प्रॉक्सिमल रिंग फिंगर, डिस्टल रिंग फिंगर, है, यू हैव एमपी। टू प्रेस स्लाइटली, ठीक है, ओवर द जो आर्टरी है आपके, उसको आपने थोड़ा सा कंप्रेस करना है, तो आपकी जो प्रॉक्सिमली जो वेसल होगी उसकी पल्सेशन थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी, उसका पल्स वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना, so you will be able to palpate the pulse then. Is that clear? मैम आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टल रिंग फिंगर कि उसकी पोजीशन कैसी होगी। बच्चे आपके हैंड की पोजीशन कैसी है? जस्ट डू द मैम, सिंपल आप अपना थिंग, वन हैंड, जो आपके एक हाथ के फिंगर्स है 3 मिडल फिंगर्स, ठीक है, तो उसको आप दूसरे हैंड के पुट दैट 3 फिंगर्स ऑन द अदर हैंड रेडियल पल्स, तो आप देखिए कि आपकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है। कहाँ पे आ रही है आपकी फिंगर की पोजीशन? palpate किया आपने? मैम आप अपना कैमरा ऑन कर दें प्लीज। ओके, अच्छा बच्चे, ये आपका जो है एक हाथ है, ठीक है, और आपने अपने दूसरे, यू हैव टू टेक द 3 मिडल फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड एंड यू हैव टू प्लेस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो मेरा रिंग फिंगर है, दैट लाइज डिस्टली, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा ऑब्लिटरेट करना है। जो उसकी पोजीशन होगी डिस्टली को आपने थोड़ा सा ऑब्लिटरेट करना है, थोड़ा सा मतलब कंप्रेस करना है, तो यू विल बी एबल टू palpate द रेडियल पल्स। अभी आप ट्राई करें। हो गया ना? ठीक है। ओके, ये बच्चे आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है। Okay, so what are the other peripheral pulses? So we have brachial pulse, radial pulse, femoral pulse, popliteal pulse, posterior tibial, dorsalis pedis, carotid and temporal pulse. ठीक है, तो अभी आपको मैं डायग्राम शो करूंगी। जो हम रेडियल करते हैं ना, दैट इज द मोस्ट फिजिबल पल्स टू palpate, ठीक है, उसमें जो है एक्सपोजर वो भी फिजिबल है। अब अगर हम उसकी, अच्छा ये डॉर्सालिस पीडिस नीचे से देखें आप, नीचे फुट पे जो डॉर्सालिस पीडिस आर्टरी है, दिस विल बी द डॉर्सालिस पीडिस पल्स, ठीक है, ये जो है तो आपका ये थंब और उसके बीच में आएगा जो स्पेस होगा, उधर आपको पल्स फील होगा डॉर्सालिस पीडिस की। अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद पे, ट्राई करें, आप लोग को फील हो रहा है डॉर्सालिस पीडिस पल्स? जो फिंगर्स, लिम्स, अपर लिम और लोअर लिम जो है तो इसकी डिस्टल वाले जो लिम्स हैं उसकी पल्सेशन जो है वो इजी होती है, उसकी एक्सपोजर, उसको एक्सपोज करना इजी होता है। बाकी जो ये फेमोरल है और पॉपुलेटिव है उसको थोड़ा सा एक्सपोज करना थोड़ा
अनफिजिबल होता है, ठीक है ना। अच्छा, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है, तो ये आप देखें जो मीडियल मेलियोलस है उसके पोस्टीरियरली द आर्टरी लाइज एंड जब आप उसको पाल्पेट करेंगे तो यू बी एबल टू पाल्पेट अ पल्स दैट विल कॉल्ड पोस्टीरियर टिबियल पल्स, ठीक है। फिर पोस्टीरियर पोप्लिटियल आर्टरी है दैट लाइज इन द पोप्लिटियल फोसा, और फेमोरल आर्टरी है, ठीक है। तो फेमोरल आर्टरी जो है ग्राइन रीजन में है, तो वहाँ पे यूजुअली जो है तो पाल्पेशन करना इम्पॉसिबल है। क्लिनिक्स में फिर भी कर लेते हैं, मेल्स को तो फिजिबल होता है लेकिन फीमेल्स के लिए नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वी हैव द रेडियल आर्टरी पल्स, ठीक है, पल्सेशन फॉर द रेडियल आर्टरी विच इज़ वेरी फिजिबल, जो कि एग्जाम में भी करवाते हैं, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी है, वो भी उसके पल्स भी पाल्पेट करना इज ईजी। कैरोटिड आर्टरी पल्स है, फोरफेशियल आर्टरी जो है, एंड टेम्पोरल पल्स। तो ये सब जो है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद पे या सब्जेक्ट पे। अच्छा, प्रोमिनेंट ही होता है। हाँ, कैरोटिड तो प्रोमिनेंट होता है। तो उसको हम क्यों ज्यादा फिजिबल नहीं कहते? नहीं, फिजिबल है, वो फिजिबल है, दैट इज फिजिबल। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द फेमोरल पल्स। रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड पल्स, टेम्पोरल, फेशियल, डॉर्सालिस पेडियस, पोस्टीरियर टिबियल, पोप्लिटियल, ये सारे फिजिबल है। एक्सपोजर इज इजी, ठीक है, फिजिबल है। जस्ट फेमोरल जो है तो उसका एक्सपोज करना इज नॉट फिजिबल फॉर फीमेल्स, स्पेशली मेल्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ टू फील द कैरोटिड पल्स। तो यू हैव टू प्लेस द लेफ्ट थंब ऑन द राइट कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का आपका थंब है, यू हैव टू प्लेस दैट ऑन द राइट कैरोटिड आर्टरी ऑफ द सब्जेक्ट इन द लोअर थर्ड ऑफ द नेक, ठीक है। जो नेक का जो है तो एक अपर पार्ट है, एक मिडल है, एक लोअर है। यू हैव टू प्लेस योर थंब on the lower third of the neck, ठीक है, at the level of the cricoid cartilage, just inside the medial border of the sternocleidomastoid and press posteriorly. अब इसमें आप देख लें, sternocleidomastoid नजर आ रहा है ना, ये कैरोटिड आर्टरी के पीछे, this one, this is the sternocleidomastoid border, lateral border, ठीक है, this one, and you have to place your thumb on the medial border of the sternocleidomastoid muscle. तो वहाँ पे जो है आपका it lies between the, ये जो आपका एडम्स एप्पल है, तो इसी के साथ ही आपका कैरोटिड पल्स लाई करता है। अभी सर आप लोग ट्राई करें खुद पे, मुझे तो अपना फील हो रहा है। एंड यू हैव टू पाल्पेट वन एट अ टाइम, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक करना है, दो नहीं करना, दैट विल कॉज द